Hello, Pradeep. I am Chandrakar Hello, sir. Ratna. How are you? I'm fine, sir. Please introduce yourself. Thank you, sir. My name is Pradeep Bambu. I am from village Ramsara, district and Tahsil, Fatehbad in Haryana. I have completed my BSc from non-medical from DN College, Hisar in 2021. Then I completed my post-graduation from De Christ University in physics in 2023. My father is a teacher and my mother is a homemaker. Okay. How many members in your family? Sir, my family consists 9 members, 5 siblings, and one my father and mother and uncle and auntie. Okay. Yes, So, sir. are you from Haryana? So, Yes, sir. could you please tell me about something special in Haryana? Something Yes, famous sir. or Yes, sir. Sir, Haryana, sir, Haryana is established on 16 November, 1 November 1966. It is famous for its food and culture. It also famous for the famous Mahabharata, Mahabharata's war. okay. Yes, sir. So, please tell me about something your strengths and weakness. Sir, yes, sir. As I have studied in both rural and urban areas, I am very adaptable in nature. I have studied the physics that is based on analytical and logical reasoning skills and problem solving skills too. That is my strength. And my weakness is that I was an introvert. But after 10th class, I have participated in many sports and take NCC in college. So that I am working on this. Okay, okay. And Yes. currently, are you working anywhere? No, sir. No, sir. Not yet, sir. I have cleared the RRB clerk exam, but not working, sir. No problem. Please Yes. define NBFC. NBFC. Yes, sir. It is its full form is non-banking financial companies, sir. And it works as a financial institution that provide lending to the marginalized and economical weaker sections. That those sections can't be reached by public sector bank. So NBFCs are used for that purpose. Are you sure? Yes, sir. ओके, नो इशू। क्लासिफिकेशन आपको कुछ पता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है एनबीएफसी का? Sir, there are two type of NBFCs: deposit taking NBFC and non-deposit taking NBFC. ओके, ओके मैडम, ओवर टू भास्कर सर। Hello, Pradeep. Hello, sir. Okay, are you feeling nervous? Yes, sir. A little bit, but Okay. I'm fine, sir. So, Pradeep, tell me, do you know what is CBDC? Yes, sir. I know CBDC. CBDC is the e-currency made by RBI. It's it is in beta phase now. It started in 2022. It is Okay. used as a e-rupee in place of the physical rupees. So, how it is different from paper currency and coins? Sir, paper currency is used are those are physical currencies, but CBDC is a digital currency. It has four types of notes like 1 rupee note, 5 rupee notes, and 10 rupee notes, and others. Okay. It is used for digital transactions. Okay. Can you tell me some of the negotiable instruments used in banking? Yes, sir. I'm not sure, but I can name a few. Yes. Like, sir,
checks or certificate of deposit, and I can only recall these two, sir. Okay. You tell me, how do banks recover their loans? Recover the NPS, sorry. What does NPA. bank do to recover the NPA? Yes, sir. Sir, first of all, bank check the borrower's situation, sir. Let's see if he has taken loans of 1 crore, sir. Then bank must have maintained securities and received some installments. So we can first calculate the net NPA. Then after it, we will contact to the borrower and check his check his situations so that we can proceed further. If he is willful defaulter, like he don't have any financial backing, so he can't pay, then we can take many steps like restructure the loan or increase the time period. And if this doesn't work, then we can ask other working committees in banks. Because bank have other cell too, like NPA recovery team and others. We can ask to seniors and colleagues so we can help them better. And our communication and the process should be very clear and fast, sir. Okay. Suppose you have some 10,000 or 20,000 rupees in some bank account. Okay, and for some unfortunate events that bank gets failed, then what will happen to those deposits? Sir, those deposit can be submitted to RBI, sir. Those can be used in any schemes Okay. and welfare schemes. Over to master. हाय प्रदीप। Hello, sir. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में? Sir, I'm more comfortable in Hindi, but I'm trying for English, sir. कंफर्टेबल अगर हिंदी में है तो फिर हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, ठीक है? Okay. तो आपने बताया कि आपका आरआरबी क्लर्क एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है, राइट? Yes, sir. कौन सा आपको मिला है आरआरबी? सर, सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर. आपने आरआरबी पीओ भी दिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यस सर, आरआरबी पीओ भी दिया था, सर. कौन से स्टेज तक पहुंचे थे आप? सर, आई ओनली अप्लाइड नहीं, आई ओनली क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन बट कांट क्वालिफाई इट. मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप हिंदी में बात करिए मेरे से। सर, मैंने आरआरबी का प्री स्टेज दिया था, सर. उसके आगे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. ठीक है, तो अगर यस आपने आरआरबी ज्वाइन करा, आपने आरआरबी क्लियर करा, अभी ज्वाइन नहीं करा, तो क्या मुझे यस बता सर. सकते हैं कि कितने आरआरबीज हैं हमारे देश में? सर, आई थिंक करंट नंबर इज 43, सर. ठीक है, बता सकते हैं कितने यस सर. पब्लिक सेक्टर बैंक हैं हमारे पास? सर, वी हैव 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, सर. और प्राइवेट बैंक्स कितने हैं? सर, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ प्राइवेट बैंक, सर. चलिए कोई बात नहीं। अभी पैनल मेंबर ने आपसे पूछा था एनबीएफसीज के बारे में, ठीक है? यस सर. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एनबीएफसीज और बैंकिंग में, बैंक्स में क्या फर्क होता है? क्यों एक पर्टिकुलर कंपनी को बैंक बोला जाता है और एक दूसरे पर्टिकुलर कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोला जाता है? क्या फर्क है दोनों में? यस सर. क्या काम क्या करते हैं एनबीएफसीज, क्या काम करते हो? The NBFC are mainly for it works between in a specific segment, sir. Like PSB, it works between PSB and corporate, not rural and corporate agencies, rural and urban corporate agencies, एग्जाम्पल के साथ समझा corporate banks, sir. सकते हैं? Like sir, it works between SBI and urban cooperative banks. It works for marginalized workers and MSME, small and medium enterprises and agriculture.
It provides lending to those sectors, those who do not have access to credit. तो उनको तो बैंक भी प्रोवाइड कर देगा। Yes, sir, but it works for small farmers and small industries, sir. तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक किस लिए है? Small finance bank comes under this category, NBFC में, sir. एनबीएफसी तो होते स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन कंपनीज में आते हैं सर, जो एनबीएफसी होते हैं उनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड फिनटेक्स आते हैं सर। ठीक है, सपना आप आइए। हेलो प्रदीप। यस मैम, हेलो। आप डीएसआईबी बैंक के बारे में जानते हैं यस मैम। क्या? डिफाइन करिए। मैम, डीएसआईबी इज द डोमेस्टिक सिस्टमिक इम्पोर्टेंट बैंक सर, बैंक में this category is made by RBI. It includes three major banks: SBI, ICICI Bank and HDFC Bank. इसमें कुछ बकेट करके टर्म आता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कितने बकेट्स होते हैं इसमें? I couldn't recall it, but I think it's 4 buckets ma'am. ओके। और आप ये SBI बता सकते हैं first bucket में। yes ma'am. आप ये बता सकते हैं कि आरबीआई कितने मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन का करेंसी नोट इशू कर सकती है? Ma'am, I don't know about this, but I will read about it. ओके ओके, लेट्स सेंड। ठीक है प्रदीप, योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। Thank you sir. I have one term. I have one question. Yes sir. मेरे को आप इतना सा बता दीजिए कि जैसे अपना बजट आया था अभी फेब के अंदर, Yes sir. तो उसके अंदर मेन फोकस पॉइंट कौन से थे? Yes sir. There are 4 engines of growth sir. The MSME, export, मैंने आपसे इंडियंस नहीं investment, पूछे, मैंने आपसे इंडियंस नहीं पूछे, मैंने आपसे फोकस पॉइंट पूछे। focus points. The former, the Andata, Nari, or I forgot those names sir. ओके, नो इशू, माय डन। एक पूछूं मैं, उसके बाद हाँ जी, वाइंड अप करेंगे, ठीक है? हाँ क्या जी। प्रदीप, मुझे आप ये बताइए, एक एक पॉइंट बताइए बस, ठीक है? एक पॉइंट मुझे ये बताया कि व्हाई वी शुड हायर यू, और एक पॉइंट मुझे ये बताया व्हाई वी शुड नॉट हायर यू। Sir, I am very adaptable in nature and I can communicate well. And sir, why shouldn't you hire me? I I fumbled up sometime when I'm talking to someone higher authority, then sometimes I fumble up, sir. ओके, लेट्स वाइंड अप। इंद्रपाल आप स्टार्ट करो। मेरे को आपका इंटरव्यू सही लगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज्यादा देते हो, उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। और मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में इंटरव्यू Yes, दो, sir. कोई आपको मना नहीं करेगा वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में कि आप Okay, sir. हिंदी में क्यों बोल रहे हो, आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप हिंदी में मोर कंफर्टेबल हो, मैं ऐसा समझता हूँ इंग्लिश से ज्यादा। तो आप हिंदी में Okay, sir. इंटरव्यू करो तो आपका बहुत बढ़िया जाएगा, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. बस। भास्कर आप बताओ। तो मैं एग्री करूंगा, जिस जो चंद्रकर ने बोला उससे से मैं एग्री करूंगा। बस मैं एक दो तीन और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आप जबरदस्ती ट्राई कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि आप इंग्लिश बोलने के लिए। आपको इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल नहीं हो, हिंदी में मुझे लगा आप हिंदी में कंफर्टेबल हो ज़्यादा, तो आप हिंदी में बोलिए, ठीक है? और सेकंड पॉइंट मुझे ये Okay, लगा कि आप, मतलब आप जो आंसर डिलीवर कर रहे थे, मुझे लगा नहीं था कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे आंसर्स। बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि आप उसको बोल रहे थे, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर आप दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, फिर से इधर आ रहे हैं। तो
जो भी आप बोल रहे हो ना वो कॉन्फिडेंटली बोलिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अच्छे से बोल दीजिए कि मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको ज्यादा ट्राई मत करिए, ठीक है? बस इतना ही। ठीक है सर। मास्टर। प्रदीप, आप वही हिंदी वाला ही बात है कि मास्टर भी आपको बोले कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में तो आप बोले हिंदी, फिर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इंग्लिश में जवाब देने लग रहे हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके। प्रदीप भाई, टेक्निकली बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे आप। बहुत ज़्यादा गलत। यस सर। सारे क्वेश्चंस के आपने बहुत सारे गलत गलत जवाब दिए, सीरीज में गलत जवाब दे रहे थे, तभी मेरा मन नहीं कर रहा था आगे इंटरव्यू कंटिन्यू करने का, और इसलिए मैंने बोला था कि इंटरव्यू बंद करिए। फिर चंद्रकार ने और भास्कर ने भी आपसे क्वेश्चन पूछे, बट अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आई वुड नॉट इवन प्रोसीड विद फर्दर इंटरव्यू। क्योंकि सीरीज में जितनों ने भी क्वेश्चंस पूछे, मोर देन 50% क्वेश्चंस के आपने आंसर्स गलत दिए थे, और आप आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, अगर नहीं आता तो ना दो, गलत तो मत दो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात है, फिर उसके बाद आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी गई। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आपने क्या बताया? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हो। वो चीज़ साफ दिख गई कि कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। मैंने जब हिंदी में अपॉर्चुनिटी, फिर आप इंग्लिश में बोल रहे थे, थ्रू आउट द इंटरव्यू ऑल्सो यू वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। हिंदी में करो लेकिन अच्छे से करो। फिर दूसरी चीज़ आपने बोला, आप अडेप्टेबल हो। अगर आप अडेप्टेबल हो तो फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो इंसान पूछता है। हेल्प मांगना गलत बात नहीं है। अपना अपने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना गलत बात नहीं है। नहीं आता तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि बहुत बेसिक चीज भी ना आती हो, और ऐसे तो पूछने में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। लेकिन आप हर क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई कर रहे हो और आपको नहीं पता है वो, क्योंकि हमें तो पता है ना उसका क्या सही आंसर है। तो ना, तो आप अडेप्टेबल हो। दोनों चीजें आपके अगेंस्ट वहां पर मेरे को नोटिस हुई। तो तीसरी चीज, फिर जब आपकी वीकनेस की बात आई तो आपने बोला कि आप फंबल कर जाते हो अपने सीनियर्स के सामने। तो वहां पे तो कॉन्फिडेंस खत्म ही हो गया, और जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता वहां पर आप कम्युनिकेटेड ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपकी वीकनेस ने आपकी स्ट्रेंथ को काउंटर कर दिया। तो सारे के सारे बिल्कुल काउंटर वाले ऑप्शंस थे, और कितने सारे गलत आंसर्स दिए थे। मैं कितनों के बारे में ही आपके पीछे जाऊं? एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक सेम होते हैं? नहीं होते, अलग होते हैं। एनबीएफसी काम क्या करते हैं? मार्जिनल फार्मर्स के पीछे जाते हैं, वो भी गलत बात है। किसी को भी आज गाड़ी लेनी होती है, अगर मर्सिडीज की कोई गाड़ी भी किसी को लेनी है, तो उसके लिए भी मर्सिडीज की अपनी फाइनेंस कंपनी है। वहां पे कहाँ पर आ गए मार्जिनल फार्मर्स? ठीक है, वो जो मर्सिडीज की फाइनेंस कंपनी है वो भी एक एनबीएफसी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट और क्या क्या क्वेश्चंस थे, अगर डीएसआईबीस की बात करी जाए तो उसमें आपने बताया कि हाँ चलो एचडीएफसी आईसीआईसीआई है, बट बकेट्स के बारे में नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। आपने बोला फोर बकेट्स, फोर बकेट्स गलत है। एंड एग्जैक्टली क्या होता है बकेट्स? फिर उसके ऊपर आगे भी हम पूछ सकते हैं ना आपसे, फोर बकेट्स है तो बताओ, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि। और वैसे भी आपका इंटरव्यू जिस हिसाब से चला वो ज़्यादा लंबा नहीं चला, ज़्यादा लंबा चलता ही नहीं। ठीक है, इसका बस एक ही इलाज है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हाँ करनी। जी सर। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कब है आपका इंटरव्यू? ठीक है सर। मेरा 16th को है सर। ठीक है, आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार इंटरव्यूज देने हैं, उससे कम नहीं। ठीक है सर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी और को अगर कुछ थैंक यू सर। ऐड करना है वरना बता देना, फिर हम क्लोज करते हैं। नो, ऑल डन। क्लोज करते यस, आपको कुछ कहना है? हैं। नहीं। चलिए ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।